Hi everyone, here I am with chapter number 3 of class 8. It's the second part of this video and the name of the chapter is Minerals and Power Resources. In previous video we have already studied about mineral resources, and in this video we'll discuss about power resources. Or about mineral resources you can get the link from description box. Fine. So in this video we'll discuss about power resources, जिसमें हम बात करेंगे types of power resources की और conservation of energy. Clear? So let me start with the types of power resources. We have two types of energy, or we can say we have two types of power resources, that is conventional and non-conventional. इनके other name होते हैं non-renewable and renewable. ठीक है, जिसमें conventional और non-renewable and non-conventional का other meaning, other thing हम इसको कह सकते हैं renewable power resources. Clear? In conventional resources we have coal, petroleum, natural gas, hydroelectricity, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. एंड इन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आते हैं आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस. फाइन. तो पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो क्लास these resources of energy are known as non-renewable resources of energy, and they are available in limited quantity apart from hydroelectric power. Clear? Further, it can be also classified under two, that is commercial and non-commercial. Clear? पहले हम commercial energy sources की बात करेंगे, जिसमें आते हैं coal, electricity, petroleum. These are all known as commercial energy since the consumer needs to pay its price to buy them. इनको लेने के लिए consumer needs to pay. Fine. तो पहले बात करें हम कोल की. कोल कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन डिकेड प्लांट्स, ट्रीज, लीव्स एंड grasses, and where they are found, they are generally found in the sedimentary rock. And according to its significance, इसकी जो importance है, due to its great significance, coal is also called buried sunshine. Fine. And this coal is used in steam engines and to generate electricity. अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा फ्रांस, चाइना, यूएसए, रशिया, और इंडिया में बात करें तो धनबाद, बोकारो, झारिया एंड रानीगंज. दीज आर सम प्लेसेस जहाँ पर कोल आप डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर? नेक्स्ट थिंग है ऑयल एंड नेचुरल गैस. So it is an eco-friendly fuel. If you are saying it's eco-friendly fuel, तो ये less polluted होता है, it creates less pollution, and it is also used for both, that is the industrial purpose or domestic purpose. Easy. Now come to electricity. Here electricity क्या है? It's a common source of energy, और ये दोनों purpose के लिए use होती है, commercial और domestic. Fine. And it is mainly utilized in electrical appliances like fridge, TV, washing machine and air conditioning. ये आपको easily पता ही है. और मेजर सोर्स कौन से होते हैं पावर जनरेट करने के लिए? वो है हमारे these three. ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, हाइडल पावर. फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट थर्मल पावर. ये ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम द हीट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ के अंदर जितनी हीट होती है उस हीट से थर्मल पावर को लिया जाता है, थर्मल पावर जनरेट होता है. हॉट वाटर फ्रॉम अर्थ इंटीरियर इज कैरिड आउट थ्रू पाइप्स. हॉट वाटर को अर्थ के अंदर से पाइप्स के थ्रू लिया जाता है एंड देन टेकन टू द पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इस वाटर को फ्रॉम दीज हॉट स्प्रिंग्स, सो वाटर फ्रॉम दीज हॉट स्प्रिंग्स आर जनरली यूज फॉर दीज पर्पज, दैट इज बाथिंग, heating, cooking and for other domestic commercial purposes. Clear? Now come to hydel power. इलेक्ट्रिक पावर है. इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है इससे बाय फॉलिंग वाटर, is called hydel power. Clear? So it is firstly developed in Norway, and let me clear this hydel power through this diagram. Here you can see this picture जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की जो जनरेट की जाती है. हाउ, कैसे होता है? इन दिस प्रोसेस
रेन वाटर और रनिंग वाटर, रिवर, रनिंग रिवर वाटर जिसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर, डैम में, ठीक है, इट्स कॉल्ड डैम। सो ये रिजर्वियर है बेसिकली, ये है आपका रिजर्व और इसको डैम में स्टोर कर दिया जाता है। एंड द स्टोर्ड वाटर इज फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट्स ओवर द टर्बाइंस ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। ये आप देख सकते हो टर्बाइन, ठीक है, दिस इज टर्बाइन, क्लियर। सो द मूविंग टर्बाइन ब्लेड्स टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब ये टर्न करते हैं तो ये जो जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ वर्ल्ड इज फुलफिल्ड बाय दिस हाइडल पावर प्लांट, क्लियर। एंड द डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज होता है, ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, दैट डिस्चार्ज water is further used for irrigation purposes. Easy. So it is all about the hydel power. Next हम बात करेंगे nuclear power की. So it is obtained through the fusion and fission. These two क्या है ये? These fusion and fissions of ये radioactive elements हैं, जैसे आपके थोरियम होते हैं, यूरेनियम होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूज़न और फ्यूज़न की, जिसमें फ्यूज़न होता है दैट रेफर्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ एटम टू गेट न्यूक्लियर पावर, एंड वेयर एज फ्यूज़न जहाँ पर टू एटम्स को कंबाइन किया जाता है टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी, क्लियर। सो इसके बाद आता है आपका व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया था नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड है इसमें सोलर एनर्जी, आपका विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। बहुत इजी है, सोलर एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट। इन दिस प्रोसेस द सन रेज आर ट्रैप्ड इन सोलर सेल्स टू जनरेट सोलर एनर्जी, और इसको यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग वाटर, स्ट्रीट लाइटनिंग, traffic signals, sterilizing cans and milk bottles, solar cookers and solar dryers, ठीक है। later on I will show the picture of these all energies। आगे हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की। ये इस तरह की एनर्जी को जनरेट किया जाता है बाय द हार्नेसिंग द पावर ऑफ विंड्स, ठीक है। वाटर बेसिकली विंड की मूवमेंट पे डिपेंड्स, ठीक है, जितना विंड की मूवमेंट होगी ये एनर्जी डेवलप होगी, ये एनर्जी जनरेट होगी। मोस्टली यूज्ड इन ऑपरेटिंग वाटर पम्प्स फॉर इरिगेशन पर्पस, इसको इरिगेशन पर्पस के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। और इंडिया स्टैंड्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द जनरेशन टू ऑफ विंड पावर, क्लियर। कम टू tidal energy, that energy generated from high tides is called the tidal energy। ये high tides जो high tides आती हैं तब ये energy generate होती है, and it is generated in the coastal area where tides occur frequently by building tidal farm or tidal mill farms can say, ठीक है। कोस्टल एरिया में इसको जनरेट किया जाता है while using the tides, ठीक है। सॉरी, सी इट्स अ पिक्चर ऑफ सोलर एनर्जी, जहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू दीज पैनल्स, क्लियर। नेक्स्ट आई विल शो यू द विंड एनर्जी। जो ये विंड मिल्स घूम रहे हैं दैट आर ओनली मूविंग बिकॉज ऑफ द विंड्स की मूवमेंट जैसी होगी तो ये विंड मिल्स ये भी घूमेंगे, और इनके नीचे जो टर्बाइंस लगा होता है जो जिनसे हाइड्रो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इनके अंदर ही एक जनरेटर लगा होता है, जैसे जैसे ये घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्लियर। और कैन से जो विंड मिल्स हैं दैट आर यूज फॉर ग्राइंडिंग टू जनरेटिंग पावर फॉर वेरियस पर्पज सच एज इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। तो जब मूविंग विंड्स होती हैं दे पोजेसेस ग्रेट एनर्जी इन द मोशन, एंड दी स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन रोटेट दीज विंड मिल्स which is connected to a generator to produce electricity, easy। okay, next हम बात कर रहे हैं conservation of power resources, how we can conserve। ये आपको पता होना चाहिए, it should also necessary। so domestic level पे हम क्या कर सकते हैं, we should support energy efficiency, जिसमें हम कह सकते हो energy efficiency क्या होता है, it basically
एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ होगा, दैट वी कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी. People should reduce the amount of energy to provide to different products. And compact fluorescent light, जिसको हम CFL बोलते हैं, बल्ब होता है, that should be used to reduce energy consumption. We should switch off the lights, fans, TVs, etc. when they are not in use. At last, low energy vehicles should be used to save fossil fuels like petrol. Okay. So it is all about this chapter. At the end, we need to discuss about some important questions. जो आपके दोनों वीडियोस में अगर आप देखोगे तो यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की. ऐसे ही कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस पूछा जा सकता है. ओपन कास्ट, शाफ्ट और शाफ्ट माइनिंग का डिफरेंस पूछा जा सकता है. एंड थर्मल पावर एंड हाइडल पावर, ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपको दोनों वीडियोस में इनके आंसर मिल जाएंगे. लिस्ट 4 uses of minerals that you can get the answer from first video. What are the different conventional and non-conventional source of energy? You can get the flow chart from this video only. And why is the conservation of minerals necessary? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. और एक और क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ यू कैन कंजर्व पावर रिसोर्सेज. क्लियर. सो व्हाई इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स नेसेसरी, ये भी आपको फर्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली. फाइन. So class, hope you understood, and here I am completing this chapter. Please go through this both videos. Till then, please be safe and thank you.